is the organizer and the host of this event. Yes. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका बहुत टाइम निकाला आपने हमारे लिए, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम viewers, you are watching me on my YouTube channel Mr. Talk. तो भाई आज है हमारे कॉलेज में मैंने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ एक इवेंट जिसका नाम है वेल सेड, और ये एक प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट है जिसके लिए जो है वो 2-3 हफ्तों से तैयारियां चल रही है, इसलिए मैं जो हूँ ज़्यादातर व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पाया। पर अब फाइनली वो सब प्रिपरेशन डन हो चुकी हैं और आज जो है कॉलेज में जाना है और वहाँ जाकर जो है वो एंड की प्रिपरेशन थोड़ी देख लेनी है। और सबसे बड़ी बात ये, थंबनेल और टाइटल से तो आपने पहचान लिया ही होगा, मगर फिर भी आप लोग बता दूँ कि आज हमारे इस इवेंट में जो कि मेरी टीम मेरिट क्लब ने ऑर्गेनाइज करवाया, तो उस इवेंट में आज वसीम बदामी, जो नहीं जानते, एक पाकिस्तानी टेलीविजन पर्सनैलिटी पब्लिक फिगर है, और वो आज हमारे इवेंट में चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। तो उनसे भी थोड़ा इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ आप लोगों को इवेंट की अपडेट भी देता रहूंगा। तो अभी फिलहाल हम कॉलेज से निकल रहे हैं, मैं यूनिफॉर्म पहन के पूरी तरीके से रेडी हूँ। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ कॉलेज में 1 hour later. अच्छा भाई, तो अभी फिलहाल जो है मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ और इस वक्त जो है वो पूरी क्लास खाली है, इस वक्त कोई भी नहीं है। और जो है मैं सबसे पहले आ गया हूँ और यहाँ पर अभी आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे आएंगे, सब स्टूडेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर क्लास शुरू होगी। क्लास के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, अभी क्लास पूरी खाली पड़ी है मेरे सामने, तो अभी क्लास लेते हैं पहले, फिर आप लोग जो है वो इवेंट की फाइनल टचेस देख लेते हैं कि सब चीज़ें जो है वो वेल मेंटेन हैं या नहीं। ये जो है वो पोस्ट थी जो कि हमने बनाई थी, और ये बैनर है जो हम लोगों ने जो है वो डिज़ाइन किया था बदामी साहब के आने की खुशी में। तो ये वेल सेड एक्चुअली मेरा इवेंट है और मेरिट क्लब ने इसको प्रेजेंट किया है, मेरा क्लब है, और ये इवेंट जो है हम टीम लोगों ने मिलकर, हमारी टीम ने मिलकर जो है ये इवेंट बनाया। Welcome to Well Said. My name is Abdul Rashid. And my name is Kurt Victor, and we are thrilled to be your host for this exciting event. Now I would like to introduce our wonderful judges. It's not every day that we have the privilege of being the company of such remarkable individuals. Before we dive into the heart of our competition, let's take a moment to get to know the experts who will be guiding our participants. They are the epitome of excellence in their respective fields. Each one brings a unique perspective and a wealth of experience. Prepare to be inspired as we introduce the judges and the architect of our competition. So please welcome Mr. Zain Messiah and Mr. Sheen, representing as a jury member for the event. Well said. Give a big round of applause. Now, without further delay, I would like to introduce our contestants. Let's meet our talented contestants. Each participant has undergone a rigorous selection process. Today, they are here to showcase their presentation on different topics. So, for discussing the factor of inspiration, I would like to invite Batul Zara, student of AKU first year, who are going to represent her thoughts on the topic Inspiration Rules the Nation. Give him a huge round of applause, guys. Batul Zara. Thank you so much, Batul. Now, putting the event ahead, we are proceeding to our next participant. We will be sharing our ideas on the topics lives are discarded on the beds of hospital. Please welcome Maria Gupta of AS Science, and let's listen their viewpoint on that topic. Our next pair participants, Kinza Ijaz and Alisha Arvin, student of AS Science, who are going to outlook and add up some more facts regarding the topic lives are discarded on the beds of hospital.
अंदर हो जाओ यार। आपकी बनानी Control my excitement level, please. Please take it. Okay, now participants, I would like to invite our last participant for our event, Well Said, who is Muhammad Bilal, student of AKU first year, to deliver his presentation on the topic, the grades are listed as unemployed. Muhammad Bilal, you will give a call now. Opportunities. So it's a sort of some like difference between these type of skills and the mismanagement and the crucial for socio-economic stability and progress. Families are devastating, communities has not much interest in it, and the economy at large scale, GDP per capita is decreasing. Literacy rate is very low. Next. Thank you so much. If anyone have any question about it. Thank you so much. Thank you so much, Bilal. It's a wonderful presentation that you have delivered. Now, the world of personal journalism. One name stands out for the beacon of excellence. Step into the world of dynamic storytelling and unveiling them. With the one and only person joining us for our event is more than that. A prominent Pakistan television host, journalist and anchor, known for his significant contribution to the field of media and half the world for our participants. Please, sir. अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हम लोग ठीक ठाक हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ मुझे बुलाने का और इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। हमने खुद भी अपने ज़माने में, ज़्यादा पुराना नहीं है, पुरानी बात है, अपने ज़माने से लगता है पता नहीं भाई इसी की बात है, इस तरह की प्रेजेंटेशन दी हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे और सारा कुछ। वैसे इंटरेस्टिंग ये बताऊँ आपको कि मैं बहुत अरसे तक मैं अवॉइड करता था, बचता था किसी किसी पर जान छूट जाए कि प्रेजेंटेशन ना देनी पड़े, बात ना करनी पड़े। एक वो मैंने शायद पहले कहीं ये बात शेयर नहीं की, तो वो एक दफा ये हुआ कि वो नहीं, वो आपस में सब दोस्त यार कभी घेर के फंसा देते हैं किसी को, यार इसका तो बड़ा गलत कराओ ना। तो इस तरह से हुआ था कि एक दफा टीचर्स वगैरह के सामने कुछ मेरे दोस्तों वगैरह ने मुझे उनको घेर के ना कि नहीं इनसे अगले प्रेजेंटेशन मैं उस जमाने में नात वगैरह पढ़ता था, लेकिन मैं स्कूल में जरा घबराता था, मैं बहुत हेजिटेट करता था कि प्रेजेंटेशन वगैरह देना। तो उन्होंने मुझे बस एक दफा धक्का दे दिया कि नहीं मिस ये अच्छी करेगा प्रेजेंटेशन आपको। वहाँ से आई स्टार्ट, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन जो हमारी ग्रुप एक्टिविटी तो उसमें मैं नहीं करता था। बाहर मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब एक तो छोटी छोटी बातें, चूंकि ये वेल सेड एंड आई एम अज्यूमिंग कि कम्युनिकेशन और इस हवाले से कुछ बात हो रही है, तो एक तो बड़ी सादा सी बातें हैं। कोई है शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी है? हाँ सर को है, कोई स्टूडेंट्स को क्या कोई अपना कोई शेर अपना कोई फेवरेट शेर है कोई सुनाएंगे? कोई आप सुनाते क्या कोई अपना पसंदीदा शेर सुनाए ना कोई भी? वैसे कौन है? हरीश। अच्छा हरीश का हरीश शर्मा है। अच्छा वो कम्युनिकेशन के हवाले से 2-3 बातें मुझे समझ में आती है ना, तो अपनी बात समझाने के लिए शेर का सहारा होगा।
देश से कि सुना होगा आपने, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, सबसे बड़ा पर नहीं, ताकत परवाज मगर रखती है कि उस आपको परवाज के लिए बजाय तो पर चाहिए होते हैं, लेकिन ये जो दिल से जो बात निकल रही होती है उसके बजाय पर नहीं होता, लेकिन परवाज की ताकत होती है। सो मुझे लगता है कि जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये एक वन ऑन वन एक हाईली प्राइवेट एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो अपनी कोई बात कम्युनिकेट करने का, या इससे का प्लेटफॉर्म हो या इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो, एक बुनियादी उसूल जो जहन में बहुत रखना चाहिए वो ये कि आप ये देखें कि मैं अपने तौर पे कहता हूँ कि वो आप यहाँ से ना बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, क्योंकि आप जब आप एक हार्ट टू हार्ट जब एक कम्युनिकेशन एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, वो हम नहीं सुनते कि जनाब कायदे आज़म तकारीर कर रहे होते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी जबान भी नहीं समझते थे, वो उससे रिलेट कर रहे होते थे, उसमें तालियां बजा रहे होते थे, और एक पूछा गया इससे कि यार ये तो जो आदमी जो जिस जबान में बात कर रहा है तो तुम्हारी हुलिये से लग रहा है कि तुम्हें इनकी जबान समझ में नहीं आती होगी। मुझे नहीं मालूम कि ये बात हमने सुनी है, बारहा सुनी है, लेकिन इररिस्पेक्टिव की एक असल बात हो या हिकायत हो, इसमें लेसन है कि कहा कि भाई तुम्हें समझ आ रही है जिस जबान में बात कर रहे हैं, नहीं समझ में नहीं आ रही बात किस जबान में बात कर रहे हैं, लेकिन अंदाज हो रहा है कि जो कह रहा है वो सच कह रहा है, एक हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कहीं भी हम कोई बात करें तो इसमें ये जरूर देखें कि ये बात दिल से होनी चाहिए। कभी कभी हम कंफ्यूज भी कर देते हैं चीजों को, फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह, अच्छा कोई बात नहीं ये उठा लेता हूँ। अच्छा सो एक टाइम ये भी हो रहा होता है कि हम ना कॉन्फिडेंस और अपनी बैड प्रिपरेशन को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा कई मरतबा हुआ कि मैं बात कर रहा हूं और मैं जब बाहर निकल जाऊंगा कि यार मुझे फीडबैक आएगा कि आज आप कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे यार, आज वो बात नहीं थी यार, सही देखने वाले को ये लग रहा है कि यार ये कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, आज वो बात नहीं है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन सही भी होगी, उसकी असल वजह लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगी, उसकी असल वजह लैक ऑफ प्रिपरेशन होगी कि मैंने बात करनी है एक मौजू पे, मैंने करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करना है, किसी भी दुनिया के मौजू पे बात करनी है, और जब मेरे पास मवाद ही नहीं है, मतलब ऐसे ही कि आप अगर जंग में उतरते हैं तो जंग में उतरने के लिए जिगर गुर्दा तो चाहिए भाई, हथियार भी तो चाहिए ना, तो आप दुनिया के सबसे बहादुर आदमी को भी जंग में उतार दें और कहें यार बस सामने का जितना लश्कर उसके पास सारा असला होगा दुनिया का, तुम्हारे पास नहीं होगा, जाओ लड़ लो, तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब उसमें बराबर का मुकाबला ही नहीं हुआ। तो इस पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में अपने स्टूडेंट्स में बाकायदा देखा है कि वो करते क्या है, मैंने मीडिया के कुछ कोर्सेज वगैरह पढ़ाए, जैबिस से ही मैंने पढ़ा और जैबिस में दो कोर्सेज पढ़ाए थे, वो करते क्या है कि वो तैयारी सिफर होगी, किसी मौजूद बात करनी हो तैयारी बिल्कुल नहीं, अब आते हुए जो अब जब बात करनी है किसी मौजू पे किसी स्टेज पे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं कि घर पे जाके या बाद में तो यार ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, यार ये मैं नहीं कर सकता यार, वो कर लेता है मैं नहीं करता, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और भाई कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, इन दो चीजों को कंफ्यूज ना करें कि उसको हमेशा जो है वो एक अपनी तैयारी अगर मुकम्मल हो तो उससे एक बहुत ज्यादा एक बहुत जरूर फर्क पड़ता है। और बाकी अगेन मैं एक और शेर का सहारा लेता हूं, सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो आप अगर ये सोचें कि यार अभी इसमें तो ये भी हो गया और ये भी बात हो गई तो व्हाट डिफरेंस कैन आई मेक, तो भाई ये सारी आपकी एग्जीक्यूशन की, सारी आपकी प्रेजेंटेशन की गेम है। वही 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की मूवी होती है जिसमें से 90% आपको पता है कि 90% कहानियां यही है कि ये एक साहब है, ये एक साहब है और 2.5 घंटे बाद इनकी शादी हो जानी है। सब देख लो, एग्जीक्यूशन का फर्क है ना, वरना तो नटशेल में सबको पता है कि बस अभी शुरू में ये मामला शुरू हुआ है, अभी अगले 1-1.5 घंटे तक चलेगा और आखिर में जाके शादी हो जाएगी, लेकिन सब देख रहे होते हैं वो तो एक एग्जीक्यूशन का। तो ये 2-3 चीजें मुझे लगता है, दिल से बात करना, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच, मैं अगर जज्बातियत का सहारा लूं तो मैं कहूंगा कि बस दिल से बात करें तो आप कमाल कर देंगे। नहीं भाई, दिल से बात करना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही एक एलिमेंट नहीं है, अपनी तैयारी, अपना होमवर्क मुकम्मल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपके पास इतना असला बारूद तो हो कि आप चला सकें, आपके पास अल्फाज का इतना खजाना तो हो कि वो आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें। बात कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अल्फाज से करेंगे ना। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने अभी आखिर में आपसे जो बात अर्ज की कि आपने अपनी बात को प्रेजेंट किस तरह करना है, एग्जीक्यूट किस तरह करना है। मेरी तरफ से आखिरी बात, एक बात जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ प्लेटफॉर्म पे कहूँ, ये मैं किसी भी खास कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा इसको, प्लीज, और इसको किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी ना लीजिएगा।
वेरी जनरली स्पीकिंग, ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है कि इंटॉलरेंस का बहुत ज्यादा मामला है। जब मैं अपनी बात करता हूं तो मैं ये सोचता हूं, मैं ये कहता हूं कि यार आई हैव ऑल द राइट टू हैव माय ओपिनियन, कि भाई दुनिया के किसी भी मौजूद, आई कैन बी राइट एंड आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन एग्री और यू कैन डिसएग्री, बट हु कैन डिप्राइव मी ऑफ द राइट ऑफ हैविंग एन ओपिनियन? सो आई हैव ऑल द राइट टू हैव माय ओपिनियन। आई कन्वीनियंटली फॉरगेट कि मैं यही राइट आपको देने को तैयार नहीं हूं। तो फिर ये क्या, ये तो कोई उसूल ही सेम नहीं माना यार, ये तो कोई बात ही सही नहीं हुई ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि प्लीज, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि हमारे तालीमी इदारों में हर जगह एक ऐसा कल्चर प्रमोट हो वेयर वी ऑल शुड एग्री टू डिसएग्री। इसमें मसला क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग तो मुझसे पूछते हैं ना कि जी हमने सुना है ये सियासतदान जो आपके प्रोग्राम में आके तो बात कर रहे होते हैं, ये ब्रेक में तो जो वो चाय पी रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं। तो मैं आज से नहीं सालों से कहता हूं कि जी बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। आई एम एन एडवोकेट ऑफ दिस। ये मुनाफिकत नहीं है, यानी मैं चाहता हूं कि ऐसा कल्चर रहे कि जिसमें मैं और आप, अगर एक शो में दो मेहमान हैं, एक ओपिनियन आपका एक ओपिनियन मेरा है, जब उस पर डिबेट हो रही हो मैं अपने ओपिनियन पे खड़ा रहा हूं, अपने ओपिनियन पे खड़े रहें। अगर मुझे लगता है कि मेरी कहीं बात गलत है, मैं अपनी गलती मानूं, आपको लगता है आप माने, और लेकिन इसका असर मेरे जाती ताल्लुक पे आपसे, मेरी रिस्पेक्ट में आपसे नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम स्टूडियो से बाहर निकल रहे हो तो हमें हाथ मिलाते हुए ही जाना चाहिए, हमें गले मिलते हुए ही जाना चाहिए। मुनाफिकत नहीं, ये इंसानियत है भाई मेरे ख्याल में। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो जरूर करें, हैव एन ओपिनियन, व्हाई नॉट, और कोशिश करें कि वो ओपिनियन किसी में, आगे फिर कह रहा हूं, इससे पहले कि कोई और चीज गिर जाए, बात मुकम्मल कर लूं मैं कह रहा हूं इट इज अ बिट टू अर्ली फॉर मी इन द मॉर्निंग, सो मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैं किसी खास कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा। ये लेट इट बी अ डिबेट व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजन, let it be a debate which revolves around sex, let it be a debate which revolves around politics, international, whatever it is, have an opinion, have an informed opinion। ये भी बहुत जरूरी है। जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की ना, वो बात यहाँ पर भी आती है। अपनी राय कायम करने में, मैंने कम्युनिकेशन में क्या कहा, दिल से बात निकलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा भाई, प्रिपेयर्ड बात भी होनी चाहिए। सेम इज द केस व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन एज वेल। जज्बात से इंप्रेस होकर कोई ओपिनियन कायम ना कर ले किसी भी हवाले से। अगर यानी मार्केट से एक 8,000 का 10,000 का जोड़ा खरीदना होता है, तो या एक होटल बुक कराना होता है वेकेशंस में, तो उसके 15 रिव्यूज और 4 दोस्तों को फोन करके चेक करते हैं। अगर आपका ओपिनियन सस्ता नहीं है, उस होटल के कमरे से उस जोड़े से ज्यादा महंगा है, तो भाई वो ओपिनियन फॉर्म करते वक्त भी जरा उसको वेरीफाई, फैक्ट चेक ये सब करें, देन हैव एन ओपिनियन, स्टिक टू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। जब आपको लगे कि इस ओपिनियन को चेंज करना चाहिए, चेंज द ओपिनियन, बट गिव द सेम राइट टू अदर पर्सन एज वेल। अगर आपके किसी ओपोनेंट का ओपिनियन उस आपसे बिल्कुल अलग है, तो उसको फौरन सर्टिफिकेट ना दे दें कि ये तो बस फिर या तो ये झूठा हो सकता है, या फिर ये बिकाऊ हो सकता है, या फिर ये गद्दार हो सकता है, या फिर ये गुस्ताख हो सकता है। तो भाई यानी मैं अपने लिए राइट मांगता हूं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि भाई ये दुनिया के बुनियादी तरीन राइट्स में से है ये। तो अगर आप किसी को इस राइट से डिप्राइव कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उसके साथ बहुत ज्यादा जाती कर रहे हैं। सुबह के वक्त जो है इससे ज्यादा गाड़ी और मुश्किल बात है मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ और इतने एहतमाम के साथ सारी बातें सुनी। आखिरी बात, मुझे चूंकि ये जेनेरिक सी बात है, लेकिन ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, तो करियर काउंसलिंग का आई डोंट नो कि क्या सिलसिला है आपके इदारे में या नहीं है, लेकिन आप लोग अभी इस स्टेज पर हैं कि जहां मुझे लगता है अगर कोई एक बाकायदा सिस्टम नहीं भी है, तो अपने टीचर से, अपने साथी से जरूर इस बारे में बात करें, क्योंकि इस करियर के स्टेज पे एक दिमाग बनाना कि आगे क्या करना है। एंड अगेन वही बुनियादी उसूल फिर वो याद है, जज्बातियत की बुनियाद पे कोई ना बनाए कि मैंने आगे क्या करना है। उसको भी देखेंगे। मुझे बहुत शौक था एक अच्छा क्रिकेटर बनने का, ठीक है जी, बहुत शौक था मुझे, लेकिन मुझे 6 हफ्ते खारादत की गलियों में क्रिकेट खेल के आइडिया हो गया, मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। पता होना चाहिए कि आपका सेट ऑफ स्किल्स क्या है, और उसके बाद अपना एक माइंड जरूर बनाना चाहिए। अगर आपने सही फील्ड का इंतखाब किया और अगर अपने हिस्से की मेहनत की है, जो कि अगर आपने की है या नहीं की है, ये आपको सबसे बेहतर पता है। ये सिर्फ आपको और आपके अल्लाह को सबसे बेहतर पता है। हो सकता है कि मैंने किसी चीज की तैयारी ना की हो, मैं लोगों को चीट कर लूं कि यार देखो मैं प्रिटेंड करने में कामयाब हो जाऊं कि मैं आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, डीप इन माय हार्ट आई नो कि नहीं ये कोई बात बनी नहीं है। तो ये आपको पता है कि आपने अपने हिस्से की मेहनत की है या डंडी मारी है। अगर आप सही जगह पर है और अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है। और अगर आपको फौरी तौर पर रिवॉर्ड नहीं भी मिलता, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपको रात को बहुत इत्मीनान से सोने की जरूरत इसलिए है कि आपका फिर मामला उस जात के साथ है जो किसी का उधार रखता नहीं है। सूनर और लेटर आपको पे बैक होना ही, उसके पास कोई कमी भी नहीं, शॉर्टेज नहीं है उसके पास कि उसने 8 अरब लोगों को दे दिया तो आपके लिए बचा नहीं कुछ उसके पास, और उसके अदल पे भी मुझे और आपको कोई शक नहीं है। तो सूनर और लेटर उसका रिवॉर्ड मिलना ही है। सो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट and try to give your level best and leave the rest to Allah. Inshallah, you all can do it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Sheen and Sazan Nakaya to please come on stage to announce the winner of this event. Give a round of applause, guys. First and foremost, Abdul Rafi, he was the organizer and the host of this event. Yes. Thank you. Secondly, Kurt Victor, the volunteer and co-host. Ali Raza, volunteer and program coordinator. Yes. Thank you. Mehlam Soni, volunteer media officer. Thank you. Asnain, volunteer social media manager. Yes. Thank you. Hussein Aban, volunteer for logistics. Yes. Thank you. Hassan Aban, volunteer, main coordinator. Thank you. Zoha Shafiq, volunteer female coordinator. Yes. Thank you. We truly thank you for being here and Bye. Thank you. I would like to click a picture with all of you. यहाँ से बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत टाइम निकाला आपने हमारे लिए, आपका शुक्रिया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। जाएंगे हम तो, हाँ जाएंगे। अच्छा A few moments later. काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा हो गया और अब फाइनली जो है इवेंट ख़त्म होता है। हमारी टीम की काफ़ी अच्छी कॉपरेशन थी, साथ साथ जो है वो कॉलेज की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिली, तभी जो है हम इस कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुल कर पाए। बाकी वसीम मदामी साहब ने आके तो फिर 4 चांद लगा दिए। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो गया जब वो वसीम मदामी आए। खासकर स्टूडेंट्स के दरमियान वसीम मदामी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने इन चीज़ गेस्ट को बुलाया था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हुई, एक्साइटमेंट लेवल ही बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके आने से हमारे इवेंट को 4 चांद लगे, तो 5 स्टार्स लग गए।
स्टार्टिंग में मैं नहीं ब्लॉग कर पाया, आप लोग अपडेट्स नहीं दे पाया बिकॉज मैं इवेंट्स पे लगा हुआ था। वसीम बदामी को यार पहली बार अपनी आंखों से इवेंट तो बहुत अच्छा था, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन वसीम बदामी का क्रेज़ जो बच्चों में ऑब्वियसली एक वीडियो की क्लिप में आया हुआ यार, वो आके बैठा है पूरी क्रेज़ से, वो सब फूल मचा रहे हैं यार, और सबसे मज़ेदार बात उसको जाने का जगह नहीं मिलती उसको। हाँ ये तो है, जाने की जगह नहीं, जाने की जगह भी नहीं देते बेचारे को। कसम से यार बंदा होना तो ऐसा बंदा हो यार। आज का सारा इवेंट जो है मेरी टीम जो है वेल सेड उन्होंने जो है प्रिपेयर किया था, हमारा इवेंट था वेल सेड और उसमें हमने चीफ गेस्ट वसीम बदामी को बुलाया था, तो सब कुछ जो है वो हो चुका है। और आप लोगों ने जो है फोटेजेस भी देखी होंगी जब वो आए, किस तरह उन्होंने एग्जिट की और किस तरह वो स्टूडेंट्स उन्होंने मीटअप किया, तो हर चीज़ जो है वो आपको फोटेजेस में नज़र आ गई होगी। पर अभी मैं फ़िलहाल यहाँ इवेंट्स में ख़त्म फारिग वगैरह होकर यहाँ बैठा हूँ। 1 hour later. अच्छा भाई वापस आ चुका हूँ और बहुत ही कमाल का जो है वो इवेंट हो गया, होस्टिंग भी की, ऑर्गेनाइज भी किया, साथ साथ जो है वो हमारे जो चीफ गेस्ट पहली दफ़ा मिला वसीम बदामी से, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट भी थी और उनको वेलकम किया और बहुत ज़्यादा सब चीज़ें जो है ज़बरदस्त हो गई। कॉलेज में चूँकि काम बहुत होते हैं इसलिए व्लॉग का टाइम नहीं मिल सका, साथ साथ व्लॉग नहीं होता चूँकि वो ऑब्वियसली कॉलेज है, वहाँ एक इवेंट जो है वो होने वाला था। यहाँ पर मैं व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अब से आगे जो है वो कॉलेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही व्लॉग्स आया करेंगे कि कॉलेज में कोई भी इवेंट हुआ या कुछ भी इस तरह का हुआ तो आपके साथ वो व्लॉग के तौर पर मैं शेयर करता रहूँगा। जस्ट बिकॉज के जो भी यहाँ पर नॉन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्कूल जाते हैं, जो भी कल कॉलेज जाएंगे, तो उनको ये पता चले कि कॉलेज के आजकल का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या इन्वायरमेंट है ए लेवल्स कॉलेजेस का, कि वहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटी और किस किस्म के इवेंट्स होते हैं। ये तो अभी सरसरा सा इवेंट था क्योंकि वसीम बदामी साहब आ गए और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में चला गया, पर जो है वो ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट लेवल पर भी इस तरह के इवेंट्स किस तरह प्लान किए जाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मेरी टीम है मेरिट क्लब, आप चाहो तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं, पेज उनका बना हुआ है और ये मेरिटोरियस कॉलेज के जो है वो अंदर आज का ये इवेंट वेल सेट एक प्रेजेंटेशन कॉन्टेस्ट जो है वो हुआ है। तो यहाँ हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।